When we come to the body language, according to these three, okay, these all things are important. In body language comes your eye contact. How do you have the eye contact? And second thing is hand movement. How do you do the hand movement? You will understand this by practical everything. And then is posture and gesture. Posture and gesture means how you standing, how are you having your feet like this, like this, like this, like how means what is the way of standing, posture. And confidence. How confidently are you speaking? How the confidence comes in anything. There are two factors, one experience, second practice. Okay, for the confidence you need two things. Confidence के लिए दो चीज चाहिए होता है. पहला चीज एक्सपीरियंस. आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा उस चीज में, चाहे आपको डांस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डांस करते हो तो डांस में अगर एक्सपीरियंस है तब कॉन्फिडेंस आएगा, या तो सेकंड आपने क्या किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की हो. दो चीजें होती हैं हमेशा कॉन्फिडेंस के लिए, या तो प्रैक्टिस या तो एक्सपीरियंस. अगर इन दोनों में से आपको एक्सपीरियंस जीरो है तो आपको 100% क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब मैं पहली बार अपना प्रेजेंटेशन देने गया था मैंने 4 दिन तक कंटिन्यू दिन रात उसकी प्रैक्टिस की थी. क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस जीरो था. आई हैड टू प्रैक्टिस, ओके, टू गेट समथिंग गुड वैल्यू आउट ऑफ दैट. और सेकंड थिंग, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, जितना फिर एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, 10% अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आपको क्या होता है, 90% प्रैक्टिस होता है आपका वैल्यू. उसके बाद अगर 50% एक्सपीरियंस, मतलब आपको कितना 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया कंटिन्यू यू आर स्पीकिंग इन ऑल दैट, देन यू विल हैव 50% प्रैक्टिस. अगर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो व्हाट हैपेंस, वहां पे क्या है, उनको क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. सो डू यू थिंक वो प्रैक्टिस करते होंगे, ज्यादा करते हैं, अपना स्पीच देखते हैं कैसे बोलना है, क्या चीज ध्यान रखना है, सम अ लिटिल बट नॉट वेरी मच. सो देन इट गोज टू 10%. द मोर यू हैव प्रैक्टिस द लेसर यू नीड टू need experience, and the more you have experience the lesser you need to do practice. Simple. आपके पास अभी experience नहीं होगा much of speaking, so it's all about practice. How do you practice? Okay, कोई भी चीज, it's not all about I'm saying English, it's all about your any skill that you want. अगर आपको experience नहीं है तो आप practice करो, practice experience practice के साथ आ जाएगा ultimately. Next, tone of voice. What is the meaning of tone of voice? टोन ऑफ वॉइस मीन्स किस तरीके से बोलना है, ठीक है, आवाज कैसी होनी चाहिए. हाईलाइटिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाईलाइटिंग? इफ यू लिसन मी केयरफुली राइट नाउ, व्हाट एम आई डूइंग? I'm stressing some words a little and I'm down stressing some words. I'm not saying all the words with the same speed. For example, the way I said right now, all the words, so all I stress there, right? So that is called stressing, highlighting. If I won't say like that, if I start speaking like, if I will say all the words like the same, then what will be the difference of speaking with proper way? Okay, so this is not the way people want to say, right? So there we need to understand what is highlighting, the pitch of the sound. Pitch means ऐसे चिल्ला के भी नहीं बोलना कि बहुत जोर जोर से आप बोलना शुरू कर दो. Your voice should be clear, that is all right, but you can't say it like a lot like crazy. You can't do that. And words simply कैसे presentation बनाना है, that we'll understand in the next class today. Now we're coming to some example. Poor gesture and posture. When you're giving presentation, you can't stand like this. Obviously, you can't do that. So your gesture should be right. Gesture basically means body structure. कि कैसे है, ठीक है? You can't stand like this and giving the presentation. Today I'm going to give you a presentation. Not like that, okay? So when you're giving the presentation, you should be stand still, straight, and your shoulders should be clear. Okay, first thing. Second, your hand movements, it's very important. How do you make your hand movement? आगे समझेंगे अभी अच्छे से. मतलब जितना ओपन, अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, मैं अगर आपको क्लियर करूँ. पहला चीज़, जब भी हम बात करें कॉन्फिडेंस की, या फिर जब भी हम बात करते हैं किसी कंफर्टेबल होने की, कॉन्फिडेंस की, या तो हेड, उसमें बॉडी स्पेस का बहुत रोल होता है. बॉडी स्पेस का मतलब, अभी मैं एक जगह बैठता हूँ, आप लोग बताना कि मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ. हाउ एम आई लुकिंग? ओके, इट्स लाइक अ पर्सन जो डरा हुआ है एंड ऑल दैट, राइट? ओके, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल ओपन. अब डिफरेंस क्या देखो, क्या है, स्पेस ज़्यादा घेरा है. जिसका जितना ज़्यादा स्पेस होता है, जितना ज़्यादा हम स्पेस कहते हैं, उतने कंफर्टेबल होते हैं. आपने बड़े जब कभी आपके घर पे कोई आपके ऐसा मेहमान आता है ना, जो थोड़ा सा ज़्यादा, जिसका वैल्यू होती है घर पे, इज्जत करते हैं, वो क्या बड़ा फैल के बैठता है ऐसे हाथ रख के, है ना, एंड ऑल दैट. क्यों? ही इज हैविंग कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल है, वहाँ पे सब इज्जत कर रहे हैं, तो क्या अगर ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, ठीक है. कोई इंसान छोटा बच्चा होता है, वो चुपचाप किनारे पे खड़ा होता है, ऐसे चुपचाप जाके बैठा होता है. क्यों? क्योंकि बेचारा वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है. और वही छोटे बच्चे को जब उससे छोटे बच्चे मिल जाएंगे तो वो वहाँ पे दादा बन जाएगा, सो दैट इज सिंपल स्टोरी. सो इट्स ऑल अबाउट द स्पेस. हाउ मच स्पेस डू यू एक्वायर इन द नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. प्रेजेंटेशन में भी आपके हाथ जितने चलते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके लिए स्पेस एक्वायर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान यहाँ पे, ही हैड, दिस इज कॉल्ड ओपन हैंड जेस्चर. ओपन हैंड जेस्चर मतलब आपके हाथ बंधे हुए नहीं है, लाइक दैट, राइट? योर हैंड इज ओपन.
ओके, दैट्स कॉल्ड ओपन हैंड जेस्चर। ओपन हैंड जेस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्पीकिंग में, क्योंकि अगर आप मुझे भी देखोगे मेरे हैंड्स चलते रहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक है, ये कुछ नहीं कर सकता इसमें, राइट। सो दैट इज द हैबिट, वो आदत होती है जब एक्सप्रेस करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग द बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट, हैंड मूवमेंट्स एज आई टोल्ड। संदीप माहेश्वरी, जस्ट सी हिज हैंड मूवमेंट्स, कुछ और मत देखना, सिर्फ हाथ मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट। आज का जो टॉपिक वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है टॉपिक? तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से Okay, so they were the hands always moving. Okay, if you see one more time. आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है टॉपिक? तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से Okay, so there the hand movement should be there. अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, हैंड यहाँ रखो, डोंट टाइट इट, जस्ट कीप द हैंड्स हियर एंड लेट देम गो। ओके, जैसे आप बोलना लगोगे ना, आपका कोई वर्ड नहीं आएगा तो आपका हाथ खुद ही इट विल जस्ट गो अहेड और लेट इट गो, राइट। सेकंड थिंग वाज देयर बॉडी लैंग्वेज। तो अब जो अकॉर्डिंग टू वन सर्वे इट इज बीन सेड द बॉडी लैंग्वेज इज 55% इंपॉर्टेंट इन आवर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। जब भी हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट ऐसा सेंस नहीं कि आप यहाँ पे आके कुछ बोल रहे हो, आप इवन किसी इंसान से भी बात कर रहे हो, ठीक है, देन 55% एक्चुअली व्हाट मैटर्स दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके हैंड मूवमेंट कैसे हैं, आपकी आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छे से आप बेसिकली इंटरेक्ट कर पा रहे हो फिजिकली और नॉट। सेकेंड, टोन ऑफ वॉइस, किस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड वर्ड सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स मतलब द वर्ड्स दे सेइंग। लेट मी गिव इट प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग इनिशियली, जहां पे मेरा बॉडी लैंग्वेज आई विल से 0, ओके, टोन ऑफ वॉइस 0, सिर्फ वर्ड्स मेरे ठीक हैं, ठीक है, लेट्स गो विद दैट। फॉर एग्जांपल, hello everyone, my name is Abhishek and today I'm going to talk about, give me one topic, any topic, anything. AI intelligence or artificial intelligence. Okay, so today I'm going to talk about artificial intelligence. I hope you guys will listen me carefully and will get a lot of knowledge from me, because AI is very important, like the way I'm saying. What were here? No body language, no eye contact, no tone of voice, no highlighting, nothing. So how was the presentation? It was worst, you can say. Okay, it was very bad basically, right? Second, when we talk about something that where we have the body language but tone of voice अच्छा नहीं है, या फिर we don't have the body language but tone of voice अच्छा है. For example, let's take it the body language tone of voice good और body language अच्छा नहीं है, ठीक है. For example, hello everyone, my name is Abhishek Thakur, respected one and all present here, respected teachers, principal and all other students. Today I'm going to say about artificial intelligence. It is the future. If you talk about the future of India, that will be our future of the world. That will be intelligence which is beyond the imagination of people. I was saying right, but क्या है, हाथ उधर है, मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऑल दैट. ये मैक्सिमम होता है जब आपने रट्टा होता है, कोई चीज़ रट्टा मारा होता है, एंड देन यू सेइंग लाइक दैट, इट हैपेंस, आई एम सेइंग ऑनेस्टली, आई डिड दैट. एंड थर्ड, जब वर्ड्स अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स भी बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस अच्छी है, इट विल लुक बेटर. लेट मी क्लियर. अब मैं तीनों चीज़ें अगर इकट्ठी करके बोलूँ, सो हाउ विल इट लुक? ओके, it's not all about past, it's all about future. That is what the Albert Einstein said. Artificial intelligence is one of the thing which which will have in the future, because future is all about artificial intelligence. The mobile phone that you use, it is also a part of artificial intelligence. So today I am Abhishek Thakur going to represent a topic which is about artificial intelligence. I hope you'll get so many knowledge about that, and you will also get so many things that you haven't heard about artificial intelligence before. Okay, tone of voice should be right, body language should be right, eye contact should be right, words थोड़ा बहुत आगे पीछे वो चल पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो इन सभी का कॉम्बिनेशन बनके देन वी कम टू वन प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्टाइल. ओके, अगर आप में से कोई भी चीज इनमें से लैकिंग है तो देयर इज प्रॉब्लम. ओके, सो कैन वी गो अहेड? नाउ वी कमिंग टू आई कॉन्टैक्ट. अब लेट्स चेक इट आउट वंस. In fact, too much eye contact can be off-putting. It is important to be natural and not to stare. If you need to look away while you're thinking of an answer, do so. It is simple for the interview. क्या होता है जब भी आप आई कांटेक्ट करते हो, डोंट डू द ओवर आई कांटेक्ट, मतलब कि देखे जा रहे हो, यू आर सेइंग ओनली वन पर्सन एंड वन पर्सन, नॉट लाइक दैट. थोड़ा देर आई कांटेक्ट, हियर यू कैन स्टे अवे अ लिटिल, थोड़ा देर बाहर भी देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट नाउ आई कांटेक्ट. अब जब ज़्यादा लोग होते हैं, ये तो थे कि जब 2 लोग थे तो कैसे आई कांटेक्ट, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो 2 रूल्स होते हैं उसके. क्या क्या रूल्स हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. अगर आपका ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम का मतलब ऐसे है, ऐसे लोग बैठे हुए, ठीक है,
सपोज द पीपल आर सिटिंग और ये स्टेज है, ठीक है, और आप यहाँ से बोल रहे हो, तो मेनली क्या होता है, जेड दो चीज़ें, या तो क्रॉस की फॉर्म में या जेड की फॉर्म में हमेशा आई कॉन्टैक्ट होता है, बिकॉज आप सभी से नहीं कर सकते, दैट्स क्लियर, लेकिन सभी को लगना चाहिए कि आपसे उनसे आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, या तो इस फॉर्म में होता है, मतलब आपने यहाँ देखना शुरू किया, इधर गए इधर गए इधर गए, दैट्स इट। इससे क्या होता है, आगे वाले कवर हो जाते हैं, पीछे वाले और बीच वाले भी कवर हो जाते हैं, बिकॉज जब आप आई करते हो कोई आँख के मिला रहा होता है, तो उससे होते होते देन यू कैन क्रॉस दैट, फर्स्ट वे। सेकंड, इफ देयर आर लेस देन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे हैं जैसे कि यहाँ पे स्टेज है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं 5-6 लाइन से, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे, ओके, मीन्स यू गोइंग देयर, इफ हियर सिटिंग समबडी आई विल कम हियर, आई गो देयर, मतलब रिलैक्स होके, ऐसा नहीं भागना है, ऐसे ऐसे करके देखना है, इट्स सिंपल, ओके। इधर से गए, आई हैड द आई कॉन्टैक्ट, आई हैड देयर, आई हैड देयर, आई हैड देयर, स्लोली कम बैक, ओके। अगर कोई ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, थोड़ा देर उससे इंटरेक्ट कर लो, देन मूव फर्दर। सो अभी आप आई कॉन्टैक्ट देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल, खेल को समझ गए तो आप क्या करोगे, क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? Okay, did you see that? The eyes were like, see again. अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल, खेल को समझ गए तो आप क्या करोगे, क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? Okay, you got it? My eyes were like that. Okay, now next. So जैसे हम आई कांटेक्ट करते हैं, तो फिर हमें घबराहट हो जाती है। वो है कॉन्फिडेंस। वहाँ पे दो चीज़ें, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो फिर वो होता है, बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिस है ना और खुद पे फिर भरोसा हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया ना, आई विल डू दिस बेटर, बट इफ़ यू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आपको डर लगेगा, यू विल बी स्केयर्ड, दैट्स रियली श्योर, मीन्स ऐसा नहीं होगा आप लोग डरोगे नहीं, ओके, यू आर गोइंग ऑन द स्टेज, यू विल बी स्केयर्ड, आप डरोगे बिकॉज यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम। अगर मैं 1000 बार चला गया हूँ, लाख बार चला गया हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई स्पीकर है जो बहुत बार चला गया, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 10 बार गया, वो कम डरेगा जितने पहली बार जाने वाले के इंसान के कंपैरिजन में। कोई 100 बार गया है, वो थोड़ा और भी कम डरेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आता रहता है खुद पे। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? एक्सपीरियंस होता रहता है। जितना एक्सपीरियंस होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा। एक्सपीरियंस कितना है? हाउ मेनी टाइम डिड यू गो ऑन स्टेज इन योर लाइफ? 10 to 12। कितने साल हो गए? ज़िंदगी कितनी होगी आपकी? 21। तो 21 में अगर आप मतलब 2 साल में एक बार आप जा रहे हो एवरेज, तो 2 साल में एक बार जाने पे फिर एक्सपीरियंस नहीं होता ना, मतलब वो तो फिर क्या रहता है अंदर से, फिर वो तो धक्का मार के किसी ने मतलब यू नो लेट गो एंड गिव द स्पीच, या फिर कई बार खुद को आ जाता है कि करूँ, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी मौका नहीं मिलता, तो पीछे वाली चीज़ भूल जाती है फिर कि उस टाइम पे कैसा फील हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। सिंपल चीज़ है, कॉन्फिडेंस अगर किसी चीज़ में लाना है, डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज़ द सिंपल थिंग। और कोई तरीका नहीं होता। जब जिस चीज़ से डर लग रहा है ना, उस चीज़ की तरफ देखो, उसको फेस करो। भूत नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी शुड नॉट डू? Don't jump like this. Do you see some people doing like this again and again? You know, when they give a presentation like this, you know, they do like this. करते हैं, मैं क्या बोलूँ, करते हैं। Don't do that. Okay, that is not a right gesture. Walk smoothly. लेकिन walking भी कब होती है? जब ज़्यादा लोग होते हैं। कभी भी कम लोगों में walk नहीं करते। जैसे हम 4-5 लोग हैं तो भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस स्मूथ चलना है। जैसे कि I'm walking right now, किसी को लगना नहीं चाहिए that you're walking. Don't start walking like this, you know. I will say like this, you know. Walking से फ़ायदा क्या होता है? 2 फ़ायदे हैं। पहला चीज़, आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एक जगह पे खड़े रह के ना टांगे कांपना शुरू हो जाती है। सो इट्स बेटर टू वॉक। उससे क्या होता है? थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है इंसान। Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, he was walking slow, थोड़ा इधर जाना, थोड़ा उधर जाना, then interact with the people like that. Second is tone of voice. कैसे बोलना है? Just listen the modulation, voice modulation. What is voice modulation का मतलब क्या है? कौन से words जोर से, कौन से धीरे? Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from. Okay, अब यहाँ पे आप बताओगे कौन कौन से word इसने थोड़ा stress करके बोले अमिताभ बच्चन ने? Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from. Right Money, on. ladies Knowledge. and gentlemen, anyone can steal. Anyone can steal, Knowledge cannot be stolen from. but the knowledge cannot be stolen. Knowledge stolen. Okay, so these are money, ladies and gentlemen, knowledge. These are some which are the important words. Okay, called voice modulation. वो भी सीखेंगे बाद में. Now the words. अब आते हैं वर्ड्स। अब ये सारी चीज़ें इफ़ यू अंडरस्टूड, अभी अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार रखना,
इन वर्ड्स के बाद वी गोना कम टू सेल्फ इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर आगे वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज Poem, sir. it is not poem. Yeah, it's a poem. We say poem in American accent, poem in Indian accent. Okay, both are fine. Next, often. इसमें F silent होता है. No, sorry, T silent होता है, क्या बोल रहा हूँ? Often T silent होता है, not F. This one is vehicle. When we come to the presentation, in the presentation there are two type of introductions, basic and advanced. Everywhere there are two type of things, basic and advanced. When we talk about basic things means you went there for the presentation or speech. You said simply that my name is Abhishek and I'm going to say the topic. This is that topic, okay? And I hope you listen me carefully and you'll get so much knowledge. Okay, first thing. Advanced. First impression is the last impression, right? If you say properly your introduction, self-introduction in presentation, it will be 99% it is having the lasting impact as compared to a बहुत अच्छी presentation बोलो. आपकी introduction अच्छी होगी ना, presentation whether it is good or not, it does not matter. Okay, simple तो you can make. Advanced if I tell you, एडवांस में क्या होता है, दो चीज़ें हैं. पहला चीज़, अभी मैं तीन प्रेजेंटेशंस बताता हूँ, तीन अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन, जो अच्छी लगेगी सूट करेगी वो रख लेना, ठीक है. वुड यू लाइक टू राइट? लिखना है या फिर मैं सेंड कर दूँ डायरेक्टली? वीडियो सेंड कर दूंगा. ओके, जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम देयर. वो क्योंकि लंबी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लिखाने में, सो इट्स बेटर. कुछ नहीं समझ आएगा देन लेट मी नो. देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस, एडवांस प्रेजेंटेशन दैट यू कैन डू. First presentation, there are 4 things which are important in any type of presentation starting. Presentation जब भी start करते हो 4 चीज़ें important है. क्या क्या चीज़ें हैं वो? पहला चीज़ है आपका नाम, important है, पता होना चाहिए आपका नाम क्या है. Second क्या important है आपके अकॉर्डिंग? टॉपिक का नाम. जब टॉपिक का इंट्रोडक्शन करोगे तो टॉपिक का नाम तो पता होना चाहिए. थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, पता क्या होना चाहिए? अटेंशन. आपकी क्वालिफिकेशन का क्या करेंगे उधर? थर्ड इज अटेंशन. अटेंशन ग्रैब करना है लोगों का, ठीक है. ऐसे नहीं आप गए और बोलना शुरू कर, लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं, आपको किसी को पता ही नहीं प्रेजेंटेशन चल रहा है. एंड इट हैपन्स, आपने देखा होगा अपने कॉलेज में ना, होती है चीज़ें जब प्रेजेंटेशन देते हैं एंड ऑल दैट, द पीपल आर नॉट लिसनिंग, यू नो, से व्हाटएवर दे आर जस्ट डूइंग देयर. एंड फोर्थ इज क्यूरियोसिटी. ज़्यादा सारा टीचरों को नहीं सकते, बोरिंग प्रेजेंटेशन देते हैं. टीचर बोर करते हैं. क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी क्या होता है? क्यूरियोसिटी होता है इच्छा जगाना, जानने की इच्छा, यू नो, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, कभी कोई इंसान बोर नहीं हो सकता. आई एम गिविंग इन राइटिंग बिकॉज आई हैव गिवन द प्रेजेंटेशन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस एंड आई हैव बीन मीन्स इट्स माई पैशन टू डू. तो आई कैन टेल यू सम थिंग्स, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल नेवर बी बोर्ड. नो बडी विल बी बोर्ड बाय लिसनिंग योर प्रेजेंट. क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता. ओके, सो अब ये 4 चीज़ें हैं. चारों चीज़ें थोड़ा आगे पीछे करके लग सकते हैं. पहले तरीके से जो प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन कर सकते हो वो क्या तरीका है, एक बार बोल के बता देता हूँ, दैट विल बी ग्रेट. ओके, वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट लाइन आता है, उसके बाद बाकी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, Good morning, one and all present here. Respected principal sir, teachers and all other students. Today, I am Abhishek Thakur is going to give a presentation and the name of the presentation is Artificial Intelligence. As might have you have listened about this presentation before or this topic before, but there are so many things that you're going to learn from this presentation. And I hope you learn it carefully, and if there'll be any question, please ask me at the end. So, then go with the presentation. First, you started with the name, then you told the topic. Sorry, you started with the simple thing, then topic, then attention, and then curiosity. That you're going to learn so many things. Now the second thing is statement punch. Second, पहला होता है statement, second होता है statement के through. अब कैसे? Let me clear. अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि वहाँ पे पहले मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ. जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, पहले एक शेयर बोलते हैं, देन दे स्टार्ट दैट, राइट. इन इंग्लिश द प्रेजेंटेशन आल्सो गोज लाइक, बट वी से द कोट्स देयर. फॉर एग्जाम्पल, if you're going to bet something, bet on the future because past is already gone. It's been said by the great scientist Mr. Albert Einstein because he was the genius. So if you want to be genius, then you have to focus on the things which are coming in the future. So hey everyone, my name is Abhishek and ladies and gentlemen, today I'm going to give a presentation and that topic is artificial intelligence. We can say it AI and even you can say it future intelligence system. In the future, after 50 years, everything will be of artificial intelligence. So it's better you understand it right now in this presentation as compared to learning it after 10 years when there will be no use of that. So my topic is
go with that. Okay, so have one particular flow while saying, that will be great. Okay, third is start with first thing, the topic. Third thing is start with the topic first, later go to the name and all other thing. For example, artificial intelligence. You might have listened so many times this word, but I bet very less people in this arena are sitting those really know about that. Do you really want to know about this? If yes, then this is the presentation. So hello and warm welcome everybody, ladies and gentlemen, this side Abhishek Thakur, and I'm going to present to you the topic that is artificial intelligence. And then go there. Okay, so there are three types. What can you do in the first statement? Start with the name, topic, attention and the curiosity. Second, you can start with the statement, say a quote, then go with the name, place and all. Third, start with the topic, then go with the name, place and all. So you can do either way, the way you want. ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है, अपने तरीके से बनाओ, फ्रेम करो, अपने आइडिया से, डिपेंड करता है कि ओकेजन क्या है, किस तरीके से बोल रहे हो एंड ऑल दैट थिंग. Okay, अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे. हाउ टू से द प्रेजेंटेशन. अब हो गया इंट्रोडक्शन, जो कि अभी सीखा हमने, दैट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, की खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्लियर हो गया. सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक. टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? यू माइट हैव डन द टॉपिक लाइक कि माय टॉपिक इज दिस एंड आई एम गोइंग टू से दिस सो दैट इज अ काइंड ऑफ लिटिल बोरिंग, यू नो, व्हेन यू गिव अ प्रेजेंटेशन एट अ पॉइंट कि अगर आपको इंप्रेस करना है सब सुनने वालों को, अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तब तो ठीक है, बट इंप्रेस करना है देन दे शुड बी समथिंग. क्या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? जल्दी. देखो, कभी भी बोलना है ना, स्टोरी से स्टार्ट करो. इमेजिन अ टाइम इन द फ्यूचर when you will say something and your door will open automatically. Imagine a time when you will just say your TV to change the channel and TV will change the channel. That is happening right now. But imagine something, then a robot is living with you. Robot is your roommate and that robot is doing all your work. Imagine that computer is doing everything that you are given with. Imagine you're not going to school, you're attending your class, or teacher is artificially coming to your class with virtual reality and teaching you. Yes, my dear friend, that is artificial intelligence. Okay, start with the story always. I prefer story. मुझे नहीं पता, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है ना, कहानी कितने लोग अच्छे से सुना पाते हैं? अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी पड़ेगी. मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, मीन्स आई एम नॉट वेरी गुड, बट हाँ प्रेजेंटेशन में आई मेक, यू नो, सोच के बनाना पड़ता है. सो स्टोरी टेलिंग शुड बी गुड. आपको स्टोरी की तरह बताना है, पूरा चीज़ ऐसा लगे कि जो ऑडियंस है ना वो चिपकी रहे, स्टार्टिंग से लेके, यू नो, स्टोरी गोइंग ऑन, स्टोरी और पूरी स्टोरी में आपने खत्म कर दिया पूरा टॉपिक. सो दैट इज द प्रेजेंटेशन, कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज प्रेजेंटेशन. सो आई स्टार्टेड विद स्टोरी की इमेजिन करो ये वाला टाइम है एंड ये वगैरह वगैरह वगैरह, दैट इज इट. अब टाइप्स क्या क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है इस बारे में. तो जो भी टाइप्स होते हैं दैट विल बी देयर, टाइप्स और एग्जांपल्स. उसके बाद आता है थ्योरी, हिस्ट्री, किसने पहले बनाया, कौन नाम था, क्या सोच के बनाया, किस तरीके से इन्वेंट हुआ, अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितनी जनरेशन आ गई हैं, दैट इज थ्योरी. ये थोड़ी बोरिंग होती है. उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस, कि फ़ायदे क्या क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कोई भी टॉपिक ले लो, मैं सिर्फ एक टॉपिक जो आपने बोला वो ले रहा हूँ. एंड डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या क्या है. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पता है? स्टैट्स देखें, जैसे कि ऐसा ग्राफ सा होता है, ठीक है. आपके 8th में कितने मार्क्स थे? सपोज यू वर 60%. ओके, इन 7th यू वेंट टू, सॉरी, इन 9th you went to 70%. In 10th you went to 80%. Okay, and in +1 you got less, again you went to 70%. These are called stats. Stats are basically comparison of data. Means you are comparing that पहले ये था, फिर ये था, अब ये था. Artificial intelligence में क्या stats हो सकते हैं? That how much TVs are using artificial intelligence, how much cars are using artificial intelligence, कितना % growth है, कितना क्या है, कितने प्रोडक्ट में यूज़ होता है, that all will go there. Okay, so there are stats. जैसे अगर आप कोई और टॉपिक ले रहे हो, मोबाइल फ़ोन, तो कौन सा मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा बिका पिछले साल में, ठीक है, विच मोबाइल फ़ोन वॉज द लिस्ट सेल. आप ले रहे हो टेलीविज़न, कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बिकी एंड ऑल दैट. ओके, वो सारी चीज़ें, फैक्ट्स एंड फिगर, कोई ऐसी चीज़ जो उन लोगों को कभी भी पता ना हो और आप बता रहे हो उनको. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कोई ऐसी चीज़, अब मुझे तो नहीं पता है, बट यू कैन टेक एनी. फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन है, डू यू नो हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर देयर ऑन योर मोबाइल फ़ोन? मोर देन योर टॉयलेट फ्लश. कि आपके टॉयलेट जो होता है ना, उससे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं आपके फ़ोन में. क्यों? क्योंकि इसको कभी साफ़ ही नहीं किया जाता टॉयलेट को. फिर भी हम हार्पिक से, यू नो, नो मैटर व्हाट. आप देखो, अभी आप इमेजिन करो, आप ये आपके हाथ में कीटाणु है, आपने ये पेन पकड़ा है, आप कहीं भी हाथ लगाओगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? फ़ोन पे.
यू नो, एंड देन हाथ तो धो देते हैं बट फ़ोन नहीं धोते. मैं धो नहीं सकते ऑब्वियसली इसको, यू नो, कैन नॉट अफोर्ड टू वॉश इट, बट या दैट इज़ द फैक्ट्स जो लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन, पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया था? नो, एप्पल कहाँ, एप्पल ने तो कहाँ, नोकिया. मोटो, मोटो सर. मोटो, एंड उसने बनाया था. तो ये क्या है, फैक्ट्स है. मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है, आप बता रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है इसमें. और लास्ट में क्या आएगा? कंक्लूजन एंड देन Q&A. Q&A मीन्स क्वेश्चन आंसर. ओके, कि आपके कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन प्लीज आस्क मी. दैट्स व्हाई आई एम कंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन. ओके, दैट्स इट. दैट इज द वे टू गो अ प्रेजेंटेशन. स्टार्ट लाइक अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, गो विद टॉपिक इंट्रोडक्शन, थोड़े से टाइप्स बताओ, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें. आप टाइप्स भी है ना, आप स्टोरी के थ्रू ही बता सकते हो. कैसे? इमेजिन करो आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये टाइप होता है, इस टाइप का टाइप. ठीक है, इमेजिन करो जैसे कि आप ये चीज़ कर रहे हो, उस टाइप का होता है वो वाला टाइप. ठीक है, सो वी कैन फ्रेम इट ऑल थ्रू द स्टोरी. उसका थ्योरी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टैट्स एंड ऑल दैट थिंग. ओके, ट्राई टू मेक अ प्रेजेंटेशन. चाहे 2 ही स्लाइड्स बनाओ, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्पीच. स्पीच मीन्स आप बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप इधर कोई चीज़ समझा रहे हो, दैट इज प्रेजेंटेशन. चाहे 2 ही स्लाइड बनाओ, चाहे 3 ही बनाओ, लेकिन बना के लानी है कल. ठीक है, ताकि अब ना थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से प्रेजेंट करते. एनीथिंग, टेक एनीथिंग दैट यू वांट, योर फेवरेट सब्जेक्ट, एनीथिंग दैट